Assalamualaikum. Today we are with Professor Dr. Sayyid Shabibul Hassan, the Vice Chancellor of Hamdard University. Sir, I, Engineer Bakhtawer, on behalf of Academic Pulse and Logic Solutions, welcome you. Thank you so much for taking time for us. Thank you, आपका कि you have come all the way to Hamdard University and have a discussion. You are welcome, sir. So, sir, tell me about yourself and your educational and professional background and your journey up till here. It's a very difficult question to talk about my own self because that's something which I always say that the better people would say compared to what I would say about myself. The whole journey is from Karachi, starting from schooling to college to university. I graduated from University of Karachi, Department of Public Administration in 1998, and since then I'm associated with teaching profession. Started with Karachi Department of Public Administration, University of Karachi, and then joined Hamdard University in 2017 as Vice Chancellor. So that's been the journey throughout. The whole journey is focused towards the studies and teaching the students the areas which I feel are more important than the academic degrees. Sir, mashallah, you possess such an exceptional academic record. So what was the motivation behind choosing this profession of teaching or this academia? I would say I'm very. I cannot say myself having a very exceptional kind of qualifications. It's something which is a basic requirement for this particular profession, and I definitely would like to quote over here that this particular profession is not chosen by me. It's been chosen by my father. He was the one who advised me to take this particular profession. Otherwise, like any other fresh graduate, I could have been entered into corporate world after pursuing a qualification in business related area. But he definitely has seen something in me which he believes is more relevant to a teaching profession, and that is what he induced me to go towards. And luckily, this particular area has interest for me, and rest is all history. So it means that it was not your choice to choose this profession. I always say that we tend to, you can say, incline towards what I think is right. We always have to listen to others, and sometimes best suggestions come from someone very close to you. And I always believe that my parents and I have a very strong bondage. Wherever I had any issue, I can easily discuss it with them. And it is their understanding about myself that I am that kind of person which could excel in teaching, and I totally taken that suggestion seriously, and God has helped me in terms of excelling or doing something for the society. यूजुअली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो है अगर कोई स्टूडेंट यानी कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है या फिर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो यूजुअली वो टीचिंग को प्रेफर नहीं करता है वो या तो वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ चला जाता है या वो किसी और फील्ड में चला जाता है तो ऐसा क्यों होता है यानी कि जो कहीं पे अकोमोडेट नहीं हो पाता है वो टीचिंग हमारे पास प्रेफर करता है तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है इसमें सबसे बड़ा जो प्रोग्राम टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से नहीं है, इसमें जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमारे पास बच्चों के हवाले से जो वो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग या गाइडेंस या उनकी इवैल्यूएशन के हवाले से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इस अंदाज से नहीं देखा जाता कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनके पास स्पेसिफिक टैलेंट है, क्या यूनिकनेस उनके पास है। वी टेंड टू फॉलो जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर किसी जैसे फॉर इंस्टेंस कभी हो जाता है कि भाई आईटी साइड पे ज़्यादा जाना है तो लोग आईटी की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, सब के सब आईटी तरफ। कभी जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आया तो सारे के सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम उस क्राइटेरिया पे नहीं कि उस बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्किल्स हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसको पर्टिकुलर प्रोफेशन में हेल्प करेंगी, वो अंडरस्टैंड करने के बजाय हम देखते हैं मार्केट में जो है वो जॉब किसकी ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा पे मिलेगी। तो व्हेन यू बिकम मटेरियलिस्टिक यू टेंड टू इग्नोर द इंडिविजुअल्स। हमारा फ्लॉ वहाँ पर है जहाँ हम इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते, हम उसको जो है वो एक पर्टिकुलर सेटअप में, एनवायरनमेंट में उसमें देख रहे होते हैं, उसमें उसकी इंडिविजुअलिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्लास में भी हम ऐसे ही करते हैं, सबको एक स्टैंडर्ड पे इवैल्यूएट करते हैं, सबको एक तरह से देखते हैं, सबको एक तरह से नहीं देखना होगा। अगर आप चाहें कि बेस्ट टीचर्स आपके पास अवेलेबल हों तो
उसके लिए इंडिविजुअल्स को इवेलुएट किया जाना ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं और वो क्या बन सकता है। वो हम उसको वो चांस देते भी नहीं है, ना वो खुद अपने लिए वो चांस देखता है, वो सिर्फ एक अंदाज से देखता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है। बट जो एक ट्रेंड बना हुआ है उस ट्रेंड पे चलना है, मैं उससे कंपैटिबल हूँ नहीं हूँ ये हम उसको नहीं देखते हैं या कभी उसको इवेलुएट करने का चांस नहीं देते। तो सर ये ट्रेंड किस तरह चेंज हो सकता है? मतलब आपके हिसाब से व्हाट शुड बी एडेड इन आवर डिसिप्लिन जिससे ये ट्रेंड चेंज हो जाए और लोग ये एस्पायर करें कि हमें टीचर बनना है या हम टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? देखिए मैं इसको वही मैंने कहा कि हम किसी एक उसको मैं टीचिंग प्रोफेशन के बारे से नहीं, ओवरऑल हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जो क्राइटेरिया जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जहाँ हम बहुत अच्छे सबॉर्डिनेट्स पैदा करते हैं, जहाँ हम फॉलो करने वाला बनाते हैं, वी नेवर ट्राई टू गिव चांस टू इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट देमसेल्फ। अभी भी अगर आप मैं अक्सर बच्चों के साथ ये एग्जाम्पल करता हूँ कि क्लास में अगर मैं जाऊँ या बच्चों से इंटरेक्ट उनको कहूँ कि स्टेज पे आए, सामने आए और अपने बारे में 2 मिनट बोलें। 2 मिनट बोलने क्यों नहीं होता? यू हैव टू स्पेंड 17, 18, 20, 22 years बट स्टिल यू कैनॉट टॉक अबाउट योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स। विच मीन्स कि उसने अपने आप को इंपॉर्टेंस को दी नहीं कभी, या लोगों ने कभी उस वाले से उसको गाइड ही नहीं किया कि आपको सोचना है कि आपके पास क्या ऐसी चीज है और किस प्रोफेशन किस आइडिया के साथ आप ज्यादा बेहतर जेल कर सकते हैं, वो उसके हवाले से उसको चांस नहीं मिलता। तो वो टीचिंग प्रोफेशन के बारे में चीजों को जानता ही नहीं है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो टीचिंग से कंपैटिबल है या नहीं है, या इंजीनियरिंग से कंपैटिबल है या नहीं है, या मेडिकल से कंपैटिबल है या नहीं है। बस वो एक ट्रेंड। तो इसको चेंज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस देनी होगी, इंडिविजुअल के पे फोकस करना पड़ेगा। हर बच्चा क्लास में यूनिक होता है, हर बच्चा घर पे यूनिक होता है, उसको उसी अंदाज से उसके चीजों को समझ के उसको गाइड किया जाना चाहिए। Tell me about Hamdard University. What's the vision of this university and how it is different from other universities? देखिए हमदर्द यूनिवर्सिटी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट इस हवाले से है कि ये यूनिवर्सिटी स्कूल के साथ हमारे से वजूद नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी बना दी फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सिटी। पूरा होल कॉन्सेप्ट है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक पूरा माहौल हो, एक पूरा शहर हो इस हवाले से, जहाँ वो बच्चा आए स्कूलिंग अर्ली स्कूलिंग से लेके उसकी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन तक कंप्लीट एक एनवायरनमेंट हो जिसमें तालीम के साथ तरबियत वाला एलिमेंट भी हो। इस हवाले से जो है वो बच्चों की इवैल्यूएशन भी हो, उनकी तरबियत भी हो और उनको वो मौके भी मिले जहाँ वो अपनी उन तालीम को जो उन्होंने क्लास में हासिल की है उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हो। हमदर्द यूनिवर्सिटी इस हवाले से यूनिक है कि अगर बच्चों को अगर अपने हवाले से बात करनी है तो दे कैन टॉक टू द वाइस चांसलर इवन एनी टाइम। उसमें कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या अपने डीन से या अपने फैकल्टी से या अपने स्टाफ से अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। बात करने पे कोई सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इश्यूज प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं बट उसका सोल्यूशन जो है उस पर फोकस होना चाहिए। जो हम बच्चों से हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी अगर इश्यूज है तो ठीक है, इश्यूज होंगे, लाइफ है तो इश्यूज उसके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी दिन ऐसा हो जहाँ कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई इश्यूज ही ना हो और आप जो है बिल्कुल अगर कुछ नहीं है तो इट वुड बी अ बोरिंग डे जहाँ पे आपको कुछ करने के लिए कुछ चैलेंज, कुछ प्रॉब्लम, कोई इश्यूज ना हो। फोकस ये होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। ऑलवेज कंसिडर सोल्यूशन एज अ बिगर थिंग कंपेयर टू द प्रॉब्लम। हम उसका रिवर्स करते हैं, हम प्रॉब्लम को बड़ा समझते हैं और सोल्यूशन का हमें पता नहीं होता। ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, ट्राई टू हैव वे आउट फॉर एवरीथिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रास्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये हमेशा हम कहते हैं कि अगर एक दरवाजा बंद हो तो 10 दरवाजे खुलते हैं। ये इस तरफ इशारा है कि आपको सोल्यूशन ज्यादा होंगे अगर आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे। आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, सोल्यूशन कम होंगे। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीजों के बारे से ऑन डेली बेसिस। आपका मैंने मैसेज पढ़ा था जो आप लोगों ने अपने प्रोफाइल पे दिया हुआ है, उसमें आप कुछ ओपन डोर कल्चर का जिक्र आपने किया है, तो काइंडली प्लीज हमारे व्यूअर्स और रीडर्स ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज दिस कल्चर? देखिए ओपन डोर कल्चर के हवाले से बात यह है कि यू नीड टू हैव द ओपननेस अबाउट वट एवर इशूज यू हैव, यू कैन टॉक अबाउट इट। उसमें जो है वो आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो मैं नहीं बोल सकता, ये तो इनको बोलो तो नाराज हो जाएंगे, या ये होगा तो मुझे जो है वो पिनलाइज कर दिया जाएगा। सच काइंड ऑफ थिंग रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर बच्चा है, अगर वो उसको किसी जगह कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो बात करे और उस बात करने के साथ साथ उसके सोल्यूशन के बारे में वो डिस्कस करे, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। वो ओपननेस होनी चाहिए जहां वो अपनी चीजों के हवाले से एक्सप्रेस कर सके। एजुकेशन सेटअप में होना यही चाहिए कि उस बच्चे को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। वो एक्सप्रेशन, हाँ उस पर आप तरबियत जरूर करें कि उसको जो है वो अपना सवाल कैसे आगे रखना है।
उसमें जो है वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट मौजूद रहना चाहिए, उसमें जो है वो डिसेंसी का एलिमेंट मौजूद रहना चाहिए। तमाम आप उसको एटिकेट सिखा रहे सवाल पूछने के, जिसको आप मैं कहता हूँ ओपननेस होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी के। आप बात करने के लिए आपको ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि जो है मैं ये ऐसे नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकते, कर सकता हूँ, बट उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि रिस्पेक्ट हो, उसमें जो है वो डिसेंसी हो, उसमें जो है वो मौका महल हो, ये सारी चीजें उसको पता होंगे, अदरवाइज यू आस्क एनीथिंग यू लाइक टू आस्क। सर आप ये बताइए कि कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे इस वक्त हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और किन किन डोमेन्स में? देखिए हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास 7 फैकल्टी है, जिनमें इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, सोशल साइंस है, मैनेजमेंट साइंसेज है, लॉ है, ईस्टर्न मेडिसिन है। अब उस फैकल्टी के अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो मोर देन 100 हैं, जिसमें कंप्लीट डाइवर्सिटी है, कि अगर आप इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी है उसके तमाम डिसिप्लिन मौजूद हैं, कि अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटो डीजल, या जो है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसी तरह से आप फार्मेसी है, इसी तरह से मेडिकल में BDS, MBBS, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, हर तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए जो अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यानी बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनिशिएट किए गए हैं। तो सर ये आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, तो जो हमारे पास दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं तो उनसे भी जो है आपका लिंक होता होगा, तो आपके हिसाब से वो अथॉरिटीज किस तरह फंक्शन कर रही हैं? क्या वो अपना रोल सही से प्ले कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता देखिए हमारे पास जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अगर हम कहें हमारे इंजीनियरिंग या मेडिकल या फार्मेसी या जो एजुकेशन, सोशल साइंस, जिसके भी रेगुलेटर्स हैं हमारे पास रेगुलरली उनका विजिट रहता है, और वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल दोज रेगुलेटर्स। रेगुलेटरी इश्यूज जो है वो हमारे पास अभी जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, उसमें बेहतरी हो सकती है, होनी चाहिए, जब भी आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी के डायनामिज्म में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं उस अप्रोच के साथ। तो वो उनके साथ हमेशा इंटरेक्शन रहता है, जब वो विजिट करते हैं तो उनके साथ सजेशंस भी रखते हैं कि जो वो जिस अंदाज से आप कह रहे हैं इसको मजीद ऐसे बेहतर किया जा सकता है, और वो ही एसेंस है किसी भी एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए। तो लकी कि जो है जब भी काउंसिल्स आती है उनके साथ जो बात होती है तो बहुत अच्छी उसमें होती है। जो भी काउंसिल अगर आती है तो बेसिकली उनके मेम्बरान जो यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं वो टीचिंग फ्रेटर्निटी से ही होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन या जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे लिए मायने रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। इसी तरह से हमारा इनपुट भी उनके लिए मैटर करता है और उसको कोशिश करते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करने की। दैट इज समथिंग विच इज अप्रिशिएट। बाकी जहाँ तक है कि उसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। जो उनके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में और चीज़ आनी चाहिए, वो उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आना चाहिए, और वो ऐसा हो जो वाकई सही सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तभी बेहतरी हम उसे दे सकते हैं। यानी दोनों एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी उसके इवैल्यूएशन के अंदर आने चाहिए, और वो फ्री फ्रॉम बाइसनेस होने चाहिए। किसी भी तरह का जो है उसमें जो है वो इंक्लिनेशन या एंगल्स ना हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक तरफ डायरेक्टेड हो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दोज क्वालिफिकेशन इन द सोसाइटी। सर आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग करते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की, तो टॉप 500 में भी कोई एक आधी यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की आती होगी, वो भी मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसका रीज़न ये है कि हमने जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे हम जा रहे हैं। हमने कहा कि पहले यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कर लें, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो इक्विप कर लें, उनको जो है उनकी लैब, उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन, उनकी PhD, उनकी सारी चीज़ें हम उस साइड पे गए। जो यूनिवर्सिटीज़ का रॉ मटेरियल है वो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में, कॉलेज में उस अंदाज से उनके ऊपर काम नहीं होता जिस अंदाज से काम होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के रॉ मटेरियल वो बच्चे हैं, उनकी हम सिर्फ फिनिशिंग या फिनिश टच दे सकते हैं उसपे, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्कूल कॉलेज में डेवलप हो चुके होते हैं। हमारे पास पेरेंटिंग के हवाले से कितने सेशंस होते हैं, नहीं होते स्कूल में। अगर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अगर होगी तो उसमें से बच्चे की शिकायत आ रही होगी या उसकी अप्रिसिएशन आ रही होगी, उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या नहीं है, किस तरह उसकी इंक्लिनेशन है, उसके हवाले से एनालिसिस नहीं आते। तो बच्चे बड़ा शरारती है, पढ़ने बड़ा अच्छा है, तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। भाई शिकायत के लिए नहीं है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या पेरेंटिंग के लिए गाइडेंस जो है वो किसी स्कूल में नहीं है, या किसी कॉलेज में उस हवाले से ट्रीटमेंट नहीं है कि बच्चा जो है वो उसका
अगर लेट्स से वो शरारती है, उसका एनर्जी लेवल हाई है, तो वो चैनलाइज कैसे होगा, उसके लिए कौन सा एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ वो अपनी स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर सके। अभी भी हम ज्यादा फोकस है बच्चों को क्लासरूम बिठा दें, और क्लासरूम बिठा के जितना उसको पढ़ा दें उसके पर डाल दें, वो किस तरह उसको अप्लाई कर रहा है उस पर काम नहीं है। जब उसको एनालिसिस या उसके थॉट प्रोसेस ही नहीं है, आप उसके प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है जिसको उस एनालिसिस बेस पे, एंड देन यू ऑल ऑफ अ सडन वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वो एक बड़ा अच्छा रिसर्चर बन जाए, बड़ा अच्छा जो है वो एक प्रोफेशनल बन जाए, वो कैसे बनेगा, उसकी जो बेसिक्स पे तो काम ही नहीं हुआ कोई। और आप उसको 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल में चाहें कि उसका पिछले 15 साल की जो एजुकेशन है उसका जो है वो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट यहाँ है, और इसी तरह जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले तो इंडस्ट्री में जैसे वो दाखिल हो उसको सब कुछ आता है और फॉरन प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो नहीं हो सकता। अप्रोच ओवरऑल होलिस्टिक लेनी पड़ेगी, यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आइसोलेशन में नहीं हो सकता कि सिर्फ आप यूनिवर्सिटीज पे टारगेट करना होगा कि यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग उस वक्त आएगी जब उस बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर पे होलिस्टिक अप्रोच पे काम होगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर हायर एजुकेशन कमीशन है तो उसके साथ प्राइमरी एजुकेशन कमीशन भी होना चाहिए, उसके साथ जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी इस तरह से कमीशन होने चाहिए, बोर्ड होना चाहिए जो इन चीज़ों पे फोकस करे कि कैसे आप इन बच्चों को बेहतर अंदाज से सोसाइटी के लिए कारामद बना सकते हैं। आप वो काम करते नहीं, आप ऑल ऑफ एंड पे देखते हैं, एंड पे नहीं होती कोई चीज़, उसके लिए रूट कॉज पे काम करना पड़ता है, जड़ से काम होगा, उसकी अगर बीज सही जगह डलेगी, सही मिट्टी होगी, सही खाद होगी तो फिर वो दर्ख्त होगा। हम कहते हैं फल सही नहीं आ रहा है, फल सही आने से पहले उस दर्ख्त की जो नशोमा होनी चाहिए थी वो कहाँ की आपने, वो की ही नहीं, और आखिर में कह रहे हैं कि जो फल बहुत अच्छा नहीं आ रहा इसमें, फल कहाँ से अच्छा आएगा। फल आने के लिए पहले उस दरख्त की उसकी बीज, उसकी केयर, उसकी जो उसकी बेसिक रिसोर्सेज चाहिए, पहले वो तो अप्लाई करें, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, और एंड में कह रहे हैं कि जो फल का जो है वो ये अच्छा नहीं है, तो दैट इज वेयर वी आर डूइंग इट रॉन्ग। आप ये जितने भी यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग में है उनका आप एजुकेशन स्ट्रक्चर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बेहतर है तो उनकी यूनिवर्सिटीज बेहतर है। ये नहीं हो सकता यूनिवर्सिटीज में आप पूरा काम करें और उसको जो है वो स्कूल कॉलेज छोड़ दें। बहुत सारे उसमें देखते हैं, हम अक्सर उसमें देखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के इसमें जो टीचर हायर किए उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब जब वो आपकी उस जो सबसे सिग्निफिकेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी सोसाइटी किसी भी इकोनॉमी, उसके ह्यूमन रिसोर्स, उसकी बेसिक तरबियत ही आप गलत करवा रहे हैं, उस पर फोकस ही नहीं है, और फिर चाहेंगे वो जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके, या जो यूनिवर्सिटी में नहीं भी आ सके वो कॉलेज में या सोसाइटी में वो काम करे बाद में जाके, तो वो बहुत अच्छा काम करे। जो बेसिक नशोनुमा थी वो तो की ही नहीं आपने, उस पर तवज्जो नहीं दी। हम अगर अर्बन सेंटर्स में देखें तो फिर भी थोड़े स्कूल ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज तो नहीं है। आपके करोड़ों बच्चे स्कूल से ही बाहर हैं, यूनिवर्सिटी दूर दूर की बात है। तो आपके पास हो सकता है उन करोड़ों बच्चों में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, 1000 बच्चे ऐसे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हो, लेकिन उनके पास वो एक्सेस ही नहीं अवेलेबल था, तो कम्पीट किधर करेंगे वो, या आपकी यूनिवर्सिटीज किधर जाएंगी, आपका मुल्क किधर खड़ा होगा जब आपने बेसिक जो इवेल्युएशन से करोड़ों बच्चों को वैसे निकाल दिया, उसमें आए ही नहीं वो। सर आपने अभी इंडस्ट्री की बात की कि हमारे पास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए उसका कोई होता ही नहीं है, तो वो तैयार नहीं होता उसके लिए। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल गैप है, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच में जो इतना ज़्यादा गैप है, इसको किस तरह ब्रिज किया जा सकता है? देखिए उसका ब्रिज करने का बेसिक फॉर्मूला तो यही है कि जो है वो उनके दरमियान इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हों, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टी भी जो है वो इंडस्ट्री जाके उनके साथ बैठ सके, उनके साथ डिस्कस कर सके, उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह एकेडमिया में जो है वो इंडस्ट्री जो है वो आए और अपनी बात रखें। नॉर्मली हम ये चीज़ करते नहीं हैं, ना इंडस्ट्री के पास वो टाइम है कि हमारे लगेगा कि अगर हम फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो वो टाइम वेस्ट हो गया, या अगर यहाँ आएंगे तो जो है वो एक सतही बात हो गई, लेक्चर हो गया, कुछ हो गया, वो बेसिक इंटरेक्शन जहाँ उनके बुनियादी सवाल एट लेंथ डिस्कस हो, वो सब चीज़ें नहीं होती। जब तक हम इन चीज़ों को डेवलप नहीं करेंगे चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप जैसे आपने बात की थी कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं और वो रैंकिंग में अच्छी हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में अच्छी हैं जिनके फैकल्टी मेंबर इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं एडवाइजर्स कंसल्टेंट कुछ ना कुछ उस पर काम कर रहे होंगे, वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे होंगे। जब वहाँ से प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों को पता होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में या इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो उस इंडस्ट्री में जाने से पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में एक अपनी राय रखते हैं, एक अपना जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जब आप वो नहीं रखेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने डोमेन में है, इंडस्ट्री अपने डोमेन में, उनका इंटरेक्शन ही नहीं है, तो जब भी
क्रॉस ओवर होगा, यानी वो बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा तो वहाँ के लिए वो एलियन होगा, और कोई इंडस्ट्री से बंदा जो है वो अगर इस साइड पर आएगा तो वो यहाँ की चीज़ों के वाले से एलियन होगा। वो इंटरेक्शन जब तक आप नहीं कराएंगे कॉन्स्टेंट बेसिस पे और विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये जो काम कर रहे हैं दिस विल हेल्प नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वेदर एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, बल्कि साथ ही साथ वो सोसाइटी के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन होगी। एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ एज इंडस्ट्री और एज एकेडमिया कि हम एक बेहतर सोसाइटी की तख्लीक में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सर हमदर्द यूनिवर्सिटी इसलिए क्या एफर्ट्स कर रही है अपने स्टूडेंट का, क्या उनका उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कैसा होता है, उनकी जो है ना वो फिर जब जाते हैं तो कैसा उनका एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे? वी हैव स्टार्टेड दैट वर्किंग, और थोड़ा सा जब मैं ज्वाइन किया था उसके बाद वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि हम इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन रखेंगे। एंड फिर बीच में कोविड की सिचुएशन आई तो हमारे पास 2-3 साल गैप आया, एंड देन वी हैव स्टार्टेड इट अगेन, जहाँ इंडस्ट्रियल विजिट्स बच्चों के फ्रीक्वेंटली हम करने की कोशिश करते हैं। इस हद तक बल्कि अभी हम लास्ट सेमेस्टर बच्चों को जो है वो जब हम यूरोपियन टूर पे लेके गए थे तो वहाँ उनको जो है वो हमने वहाँ की इंडस्ट्रीज भी विजिट कराई थी कि वहाँ इंडस्ट्रीज के साथ BMW कंपनी के उसमें भी गए थे, फिर एक श्वेनफोर्ड में शेफर कंपनी उसमें भी गए थे जो ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, जस्ट टू गिव एक्सपोजर टू स्टूडेंट के इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उनके अंदर इन्वायरमेंट क्या होता है। इसी तरह से बच्चों को हम इनकरेज करते हैं कि अपने इवेंट या एक्टिविटीज के लिए जो है यू नीड टू गो फॉर स्पॉन्सर्स इन दी इंडस्ट्री, जाएं जाके वहाँ के इन्वायरमेंट देख कर आए या वो चीज़ों को कैसे असेस करते हैं रादर देन सिटिंग विद इन द यूनिवर्सिटी और यहीं पे आप चीज़ें अपनी करके और जो है वो सेटिस्फाइड हैं। वो इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ बच्चे जो है वो जाके चीज़ें करें। अगर कभी बच्चे हमारे पास लेके आते हैं प्रॉब्लम, कहते हैं ठीक है प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन बताओगे, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं जस्ट गो एंड डू इट, करके दिखाओ, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात होती है कि यू कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और वो जब वो कॉन्फिडेंस होता है तो वो इंडस्ट्री में उसको परफॉर्म करने में आसानी होती है। ऑब्वियसली अगर हम इंडस्ट्री विजिट कराते भी हैं तो वो भी बहुत शॉर्ट टाइम, अगर 30 बच्चों को लेके जा रहे हैं और 2 घंटे का विजिट है तो मिनट्स में उसके पास जो एक्सपोजर की बात करते हैं। बट व्हेन यू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज वट एवर सोल्यूशन यू थिंक ये सोल्यूशन होना चाहिए और यू कैन एक्सरसाइज द सोल्यूशन ऑन ग्राउंड, तो फिर आपके पास वो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है ये जो मैंने किया था सही नहीं हुआ था, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगा तो सही हो जाएगा। आई ऑलवेज से जो हम बच्चों को भी कहते हैं कि दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन मेक ऑल द मिस्टेक्स, जितनी गलती कर सकते हो यहाँ कर सकते हो, यू वोंट बी पेनलाइज फॉर इट, यू विल गेन एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, चाहे सक्सेस या फेलियर जिसको आप कहते हैं। बट इन एक्चुअल यू गेनिंग एक्सपीरियंस, और वो अंडरस्टैंडिंग अगर उनकी हो तो जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो दे नो कि अगर ये करेंगे तो उसका जो आउटकम ये आएगा। इन दैट केस अगर कहीं वो फेल होते भी हैं तो दे नो कि प्रॉब्लम या फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं है, असल इंपॉर्टेंट उसके सोल्यूशन है, एंड देयर वुड बी समवेयर एल्स या सम अदर वे द सोल्यूशन वुड बी अवेलेबल, वो हमने सिर्फ उसको सर्च करना है। तो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वी ट्राई टू डेवलप टू द स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पढ़ाए जाते होंगे। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में अराउंड 30 डिसिप्लिन जो हैं इंजीनियरिंग के वो पढ़ाए जा रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। सर आपके हिसाब से ये इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन जो हो गई है ये ठीक है? क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि 4-5 डिसिप्लिन होते थे जिसमें सिविल था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था। अब इतने ज्यादा डिसिप्लिन हो गए तो ये इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन ठीक है, ये सही इनिशिएटिव है? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए यूनिवर्सिटीज की अगर आप बात करें, यूनिवर्सिटीज बेसिकली आर अबाउट रिसर्च एंड रिसर्च इज अबाउट इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स मींस क्रिएटिविटी। तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे यही 3 फील्ड होंगी तो यू एक्चुअली किलिंग दोज इनिशिएटिव्स, आप वो अपॉर्चुनिटीज ही किल कर रहे हैं। वो स्पेशलाइजेशन अगर हो तो बिल्कुल उसमें जो है वो आप जो एक्सीलेंस के चांस है वो बढ़ जाता है कि आप पर्टिकुलर एरिया में फोकस होकर काम कर रहे हैं। जो एक चीज और ऐड की जानी चाहिए वो इंटर डिसिप्लिन कनेक्शंस करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल के साथ जो है वो मेडिकल कैसे कनेक्ट होगा, जो है वो आप बायो मैकेनिक्स आप कर सकें, या इस तरह की चीज उस स्पेशलाइजेशन के अंदर भी कोलैबोरेशन के चांस होने चाहिए। तो अगर स्पेशलाइजेशन हो रही है इट इज नथिंग टू वरी अबाउट, होनी चाहिए, जभी तो आप नए सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे, नए एरियाज आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर उसको आप किल करते हैं तो बेसिकली यू आर किलिंग द इनिशिएटिव्स और द अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च एंड इन लार्ज द अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो।
सर पर आप ऐसा नहीं समझते कि इस स्पेशलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है? जैसे कि अगर हम टेलीकॉम इंजीनियर की बात करें, हम एवियोनिक्स इंजीनियर की बात करें, हम फूड इंजीनियरिंग भी एक डिसिप्लिन है जो कि पढ़ाया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स इन उस डिपार्टमेंट में होते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती? ठीक है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ को जॉब के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो स्टडीज या एजुकेशन इज नॉट अबाउट और शुड नॉट बी अबाउट जॉब्स, इट शुड बी अबाउट व्हाट आई थिंक शुड बी द नॉलेज जो आगे प्रमोट हो, प्रोपिगेट हो। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गैप एग्जिस्ट करता है, जो गैप फुलफिल नहीं हो रहा। लोग समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटीज ये समझती है कि सोल्यूशन इस साइड पर है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ये अलाउ नहीं कर रही कि वहाँ पे आपके जो है वो नई जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हों या नए फैक्ट्रीज लग रही हों। प्रॉब्लम वहाँ पे उस सोच में नहीं है। अगर इस बेसिस पे कि मेरे पास जो है वो इंडस्ट्री नहीं लग रही तो मैं वो सब्जेक्ट पे पढ़ूँ ही नहीं या उसको ना करूँ, तो फिर मैंने बेसिकली सप्रेस करता जा रहा हूँ अपनी सोसाइटी को या उसको श्रिंक कर रहा हूँ। वो श्रिंक होकर वो 3 या 2 डिसिप्लिन तक रह जाएगी, ठीक है, यही सिर्फ काम, वो फिर एक्सपेंशन नहीं होगी। आप अगर ये चीज़ें इंडस्ट्रीज नहीं लग, आप पिछले कुछ सालों में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रुझान बढ़ रहा है, लोग नए नए आइडिया सोचते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने अगर एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग पढ़ी और मुझे लगता है कि जो है वो नहीं है, तो मैं उसके छोटे स्केल पे भी कोई काम कर सकता हूँ, कोई रिसर्च कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी के साथ ही एसोसिएट होकर, जिसको आप कहते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर्स के सॉर्ट ऑफ। तो आप उसको लेके वहां जा सकते हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं रादर देन वेटिंग फॉर समवन एल्स टू एस्टैब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तो वो रास्ता पानी खुद ब खुद बनाएगा। अगर आप उसको बंद बांध देंगे, रोक देंगे, तो वो पानी सिर्फ स्टेल होगा, फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट करने के बजाय वी नीड टू क्रिएट चांसेस फॉर अदर्स कि वो उस चीज़ को आगे लेके चलें, रादर देन कि भाई इसकी जॉब नहीं है इसलिए तुम ये ना पढ़ो। तो आपने उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को, उस पर जो पिछला काम हुआ था, सब कुछ आपने खत्म कर दिया। तो सर फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में अपने स्टूडेंट्स को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म परफॉर्म करती है जहाँ पे वो अपने आइडियाज पिच कर सकें, जहाँ पे वो अपने अपने लिए बेहतर सोच सकें अदर देन जॉब? इस वक्त यूनिवर्सिटी की जितनी मार्केटिंग कैंपेन है वो स्टूडेंट की जो कंपनी है वही करती है। हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन उसको जो रन कर रहे हैं वो हमारी एक स्टूडेंट्स की ही बॉडी है, जो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई पास आउट होने के बाद, और पूरी मार्केटिंग 3 साल से वही चला रहे हैं। इसी तरह से कोविड से पहले की सिचुएशन थी जहां हमने अपने तमाम सीसीटीवी कैमरास की जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने ही की उसकी। इसी तरह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने फार्मेसी की लैब में इक्विपमेंट्स की मॉडिफिकेशन उन बच्चों ने ही की, सिर्फ इसलिए ताकि उनको आइडिया हो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्चुअली है क्या। और जिसको जो अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वी ऑलवेज इनकरेज कि आप जाएं और करें। बिल्कुल। सर हमारे पास जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम इंस्टीट्यूट्स में, वो इंग्लिश है। आप ये देखें कि अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करें जिसमें जापान है, चाइना है, तो यहाँ पे वो अपनी जो उनकी मदर लैंग्वेज है, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, वो उसको ही प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश है। तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से जो हमारी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि अगर एक बच्चा जो है ना पाकिस्तान में पढ़ा हुआ बच्चा है, उसकी ना उर्दू ठीक होती है, ना उसको अपनी जो है ना रीजनल लैंग्वेज उसको इतने अच्छे तरीके से आती है, तो ये ठीक होना चाहिए? क्या कहते हैं किसने आप? रोका है उसको, इस चीज को होने से किसने रोका है? वो हमने खुद ने, एज नेशन ये डिसीजन हमने लेने हैं, लेकिन हम नहीं लेते ना, और हम उसमें से एक्सक्यूजेस खुद ढूंढते हैं, उसकी कंफर्ट जोन से हम खुद बाहर नहीं निकलते। उसमें जो है वो हम खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि नहीं इंग्लिश अगर बोलेगा तो जो है उसका चांसेस, ये सारी चीजें हमारी अपनी है। वी नीड टू स्टैंड एज ए नेशन। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी नेशन, हम बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और जब अपने ऊपर खासतौर बात आती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो वो गलत किया ही नहीं, मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। कि जो सही को सही और गलत को गलत कहने का करेज हो और वो अपने लिए भी एप्लीकेबल हो, ये हम नहीं करते। सबसे ज्यादा मिली नगमे मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बनते होंगे, हमारे पास होंगे उसके हजारों लाखों में मिली नगमे, बट एज नेशन अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज समथिंग जिसको हम कहीं पे प्राउडली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
इंडिविजुअल के केसेस तो होंगे कि वो किसी इंडिविजुअल ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट कलेक्टिव एज ए नेशन नहीं है। लेकिन बातें करने में सबसे आगे होंगे हम। तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। जब आप बात करेंगे तो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो आपके पास बातें करने के लिए चीजें नहीं होंगी, आपके पास काम के लिए ज्यादा आपका फोकस होगा। जिस दिन मैंने ये अपने डायरेक्शन सही कर ली, वी फोकस मोर ऑन वर्क, वी फोकस मोर ऑन रियल थिंग्स रादर देन टॉकिंग अबाउट इट। उसमें लैंग्वेज से बात, वो कंट्रीज भी तरक्की की हैं जिन्होंने जो है वो अपनी लैंग्वेजेस पे काम किया, वो ही कंट्रीज भी तरक्की की हैं जिन्होंने इंग्लिश पे भी कर सकते हैं। अगर आज अगर आप इंडिया की बात भी कर लें, बांग्लादेश की बात भी कर लें, हमसे बेहतर करना शुरू हो गए। वहाँ भी तो इंग्लिश है, वहाँ भी तो हमसे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, बट एटलीस्ट यू आइडेंटिफाई एज नेशन व्हाट यू वांट टू अचीव इन टोटल। वो हम नहीं करते, हम इंडिविजुअल ड्रिवन ही है। और इंडिविजुअल ड्रिवन का मतलब ये हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट क्राउड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नेशन। सर कुछ हमदर्द यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज के बारे में बताइए, स्टूडेंट वेलबींग के लिए यहाँ पे क्या एफर्ट्स की जाती जैसे मैंने कहा ना कि वो चांस उनको दिया जाता है जहाँ वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, अंडरस्टैंड करें। जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसका सारा जो महवर है वो हम कोशिश करते हैं वो स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस कि हम हर साल जॉब फेयर कहते हैं, उस तमाम उसकी मैनेजमेंट बच्चों के हाथ में होती है। अब स्टूडेंट्स वीक हमारा नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट वीक से है, उसकी तमाम मैनेजमेंट के टीम्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन से स्पोर्ट्स होंगे, उसकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के मैनेजिंग इश्यूज, ये सारे बच्चों के पास होंगे। द फैकल्टी वुड ओनली बी देयर टू सपोर्ट कि अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो करेंगे, अदरवाइज इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स अपनी चीज़ें खुद करें। तो हम वो कोशिश करते हैं वो प्लेटफॉर्म बच्चों के पास अवेलेबल हो, वो अपनी चीज़ें खुद करें, करके देखें। एंड इन दैट केस जहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे तो ठीक है, विल बी देयर। और इन सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम, क्योंकि जाहिर सी बात है उन बच्चों को वो एक्सपीरियंस तो नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने वो पता होगी ये चीज़ ऐसे होगी, दे विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो प्रॉब्लम के लिए वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के हवाले से या उसको आइडेंटिफाई करने के हवाले से फैकल्टी या स्टाफ का रोल हो, अदरवाइज दे नीड टू बी डूइंग इट देमसेल्फ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि सोल्यूशंस ओरिएंटेड आप कैसे बनेंगे, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व आप कैसे करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एजुकेशन सेटअप में हम इन जनरल वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते। अब सिर्फ एजुकेशन सिस्टम क्यों, अगर हम घर में भी देखें तो नॉर्मली अगर तुम्हें नहीं पता तुमको ऐसे करना है, तुम ये नहीं, तुम्हें क्या पता, तुमने अभी शुरू किया, तुम वट एवर ही हैज गेन टिल दैट टाइम, चाहे वो 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई ना कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो एक्सपीरियंसेस जो शायद मैंने ना किए हो, मैं उससे ना गुजरा हूँ, तो एटलीस्ट आई नीड टू गिव चांस टू दैट इंडिविजुअल कि वो अपनी बात एक्सप्रेस तो कर सके, हो सकता है कि उसमें वे आउट हो। लेकिन चूंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, जो कह दिया वही करो, बस बात खत्म हो गई। तो फिर मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, जो वही करे। अब उसको वो अचीव ना कर सके तो वो उसका भुगतना है उसने, या उसने उसको फेस करना है। दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया शुड ऑलवेज बी कि जब उसको आप सुने जरूर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें जरूर, और उसमें अगर कोई आप डिस्कशन कर सकते हो तो डिस्कशन जरूर करें, या तो उसको कन्विंस करें या खुद कन्विंस हो। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड कि आपने जो है वो अपने यूथ को उस अंदाज से डेवलप करें जहाँ उसके पास वो कॉन्फिडेंस हो, वो बात कर सकता हो, अपने सॉल्यूशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता हो, और उसकी रेक्टिफिकेशन या करेक्शन करने का उसके पास हो गया, ठीक है, जो मैंने कहा था, सोचा था, उसमें ये रेक्टिफिकेशन है जो मैं पहले नहीं सोच रहा था। एंड दैट वुड ब्रॉडन द होराइजन ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। जो आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन हमसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, और फिर मुल्क को कौम उस पर तरफ आराम से जा सकते हैं। सर पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो ब्रेन ड्रेन का रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि एक जो ग्रेजुएट, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का जो ग्रेजुएट है, वो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे या हम जो है ना अपने कंट्री के लिए कुछ काम करेंगे। सब यूजुअली यही इंस्पायर कर रहे होते हैं कि हमें बाहर जाना है, या फिर हम कहीं और से मास्टर्स करना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो आपके हिसाब से इसकी क्या वजह है? डू यू थिंक ये प्रॉब्लम है? मैं तो सुनी इतना प्रॉब्लम है। आपकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन एक्सचेंज से कहाँ से आता है? रेमिटेंसेस से आता है। वो रेमिटेंसेस कौन भेजता है? वो वही भेजते हैं जिनको आप कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन है। एक साइड पे ये, दूसरी साइड पे जिसको हम प्रॉब्लम के तौर पे देख रहे होते हैं कि ठीक है लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं,
इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टैलेंट ओवर हियर, जहां आप उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते जो उसको चाहिए, rather than give it that resource, वो अपॉर्चुनिटी आप वो कर सके तो ठीक है, वो करके ये एक साइड है, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में इसको, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में अल्टीमेटली आपको डेवलप करना है, और वो जब आप इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली वो जो बाहर पढ़ने गया है या बाहर सेटल होने गया है, उसको अगर नजर आए कि वो अपॉर्चुनिटी, आई नो सम ऑफ द इंडिविजुअल जो बाहर वेल सेटल होने के बाद दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वो आप अपॉर्चुनिटी से क्रिएट करें, और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसके लिए पहले अपनी जो डायरेक्शन एज नेशन हमने सेटल करनी होगी कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट एज नेशन। जो सबसे बड़ा, जब मैंने शुरू में कहा कि हम वहां हमारा प्रॉब्लम लाई करता है, जहां हम एज नेशन अपना डायरेक्शन सही सेट नहीं कर रहे, बात करने की हद तक नहीं, काम की हद तक, एक्चुअल ऑन ग्राउंड अगर वो आप करेंगे तो दैट वुड नॉट बी एन इशू। बहुत सी इकॉनमीज ऐसी जहाँ के लोग जो है वो बाहर जाके कमा रहे होते हैं, ठीक है, कमा रहे होते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है, जितनी इजी ट्रैवलिंग हो गई है, या लोग बिटवीन इकोनॉमीज जो इंटरेक्शन बढ़ गई है, कि आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह पूरा यूरोप आपके पास जो आप ट्रैवल कर सकते हैं विद इन यूरोप, बाउंड्री लेस करते थे, दैट गोज टू द होल वर्ल्ड एज वेल, कि आप किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ आपने अपने यहाँ चीजें सही करनी है। तो वहां से जो ब्रेन ड्रेन आपके यहाँ से गया है, हो सकता है आप एनवायरमेंट के लिए तो बाहर से इधर भी आ सकता है। इसकी ऐसे मिसाल अगेन बांग्लादेश के आप लें, या इंडिया की लें, या वियतनाम की लें, इवन सोमालिया की लें, घाना की लें, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही बाहर से? आ रही, इवन दो दे हैड प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। सिर्फ आप इन्वायरमेंट क्रिएट तो करें, आपके पास वापस आ जाए। ये चीज तो ऐसी है, इन्वेस्टमेंट या ये रिसोर्सेज प्रॉफिट मोटिवेटेड होते हैं, जहां पे ज्यादा फायदा नजर आएगा उस साइड पे जाएंगे, तो जाने में कोई वो नहीं है, ठीक है। एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है, लेकिन आपकी इकोनॉमी में कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है। सर, एज अ वाइस चांसलर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी, कोई अपना एक ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आप बताइए जो आपको आपने फेस किया हो यहाँ पे एज अ वाइस चांसलर टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं, ये थोड़ा सा ऐसी चीजें जो मैं इस पर कभी सोचता नहीं, कह रहा हूँ मेरी अप्रोच हमेशा से ये प्रॉब्लम है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट सोल्यूशंस। द मोमेंट यू फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम्स, तो फिर आपको जो है वो चैलेंजेस लगेंगे, इश्यूज लगेंगे, डिमोटिवेशन लगेगी। ऑलवेज से कि जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड या पॉजिटिव के साथ आप चलेंगे तो यू नेवर फाइंड समथिंग ऐसी जो आप अचीव ना कर सकते हो। आई ऑलवेज से कि जो ठीक है, मैंने सोचा मुझे ऐसे करना है, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग, स्टिल आई से कि चलो 10% हुआ है, कोई बात नहीं, सिर्फ 90% रह गया, तो 10% अचीव हो गया, बाकी 90% भी अचीव हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच चेंजेस द होल माइंडसेट अबाउट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम है, रहेंगे, जा नहीं सकते, और उसको होना भी चाहिए, इसलिए कि वो मेरे लिए मोटिवेशन है। लेकिन मैं उसको इस अंदाज से देखता हूँ कि उसके आगे मेरे पास क्या चीज़ है, यानी उसका सोल्यूशन किधर है। और जब मैं एक सोल्यूशन ढूंढता हूँ तो मुझे 4 सोल्यूशन मिलते हैं, तो वो चीज़ चैलेंजिंग फील नहीं होती। सर, एनी मैसेज फॉर आवर रीडर्स एंड व्यूअर्स? मैसेज सिर्फ इतना है कि लाइफ को हमेशा पॉजिटिव फ्रेमवर्क में देखना चाहिए, उसको कभी भी नेगेटिव फ्रेमवर्क में नहीं देखना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, और छोटे छोटे इश्यूज पे जो है वो फील करने लगते हैं कि जो है वो नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया हजारों साल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आपका उसमें जो रोल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपने आप को समझें, अपने आप को इवेलुएट करें, और उन सिचुएशन में अपने लिए देखें कहाँ अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है, जो कि यकीनन लाई कर रही होगी। हम छोटे छोटे इशू से घबरा के उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं रहे होते। लाइफ का फोकस हमेशा सॉल्यूशंस पे, पॉजिटिव उस पे रखें, आपको रास्ते मिलते रहेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप रास्ते क्रिएट करते चले जाएं, उनको ये चीज की शनाख्त देते चले जाएं कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड दैट इज व्हाट हम एज यूनिवर्सिटी, एज टीचर्स, जो हमारा बुनियादी रोल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।